آرتھر کے بنگلے پر صرف ایک ملازم تھا جس نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کے متعلق آرتھر نے بتایا کہ وہ بھی موساد سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ کھانے کے دوران آرتھر نے کہا، فی الحال تم دونوں اسی بنگلے تک محدود رہو، تمہارا باہر نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہم کب تک گوشہ نشین رہیں گے مسٹر آرتھر؟ گوشہ نشینی ہمارے مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ وہ بولا، یہ وقتی بات ہے، میں تمہارے کاغذات بنوانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تم محفوظ طریقے سے عراق سے باہر نکل سکو۔ میں نے کہا، اس کے لیے بھی ہمیں اپنے حلیے تو تبدیل کرنے ہی پڑیں گے یا؟ وہ بولا، حلیوں کی تبدیلی لازمی ہے، میک اپ کا سامان یہاں بھی موجود ہے، آج رات تک کسی بھی وقت اپنے حلیے تبدیل کر لو تاکہ کل صبح تمہاری تصویریں کھینچی جائیں اور کل ہی سے میں تم دونوں کے لیے کاغذات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دوں۔ اس رات سونے سے قبل ہم دونوں اپنے حلیے تبدیل کر چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق صبح آرتھر کو ہمارے کاغذات بنوانے کا کام شروع کرنا تھا، مگر وہ صبح کبھی نہیں آئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد رات کا کھانا بھی ہم نے ایک ساتھ ہی کھایا۔ کھانے کے دوران مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اب ٹورمینڈو نے بھی گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ آرتھر کے انداز میں وہ سختی برقرار نہیں رہ گئی تھی جس کا مظاہرہ اس نے ہم سے ملتے ہی کیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم تینوں افراد بے تکلفانہ فضا میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آرتھر اس بات کی وجہ سے بہت فکر مند تھا کہ اس کے آدمیوں میں کوئی کالی بھیڑ بھی موجود ہے۔ وہ بار بار اس عزم کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے آرتھر کی نظروں سے زیادہ عرصے بچا نہیں رہ سکے گا۔ ٹورمینڈو بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ہماری مخبری ہوئی تھی۔ صرف میں اس حقیقت سے واقف تھا کہ کسی مخبر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ آرتھر خود ہی آرمی انٹیلیجنس والوں کی نظر میں آ گیا تھا۔ ہماری یہ نشست رات 12 بجے کے بعد اختتام پذیر ہوئی اور ہم دونوں سونے کے لیے بالائی منزل پر واقع خوابگاہ میں چلے گئے، مگر آرتھر کی خوابگاہ نچلی منزل پر تھی جبکہ اس کا ملازم کمپاؤنڈ میں واقع سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ سونے سے قبل ہم دونوں نے میک اپ کر کے اپنے حلیے کافی حد تک تبدیل کر لیے۔ یہ عارضی میک اپ تھا مگر کافی عرصہ برقرار رہ سکتا تھا۔ ٹورمینڈو تو خیر میک اپ میں تھا مگر مجھے دوہرے میک اپ کے عذاب سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اصل چہرے پر نارمن شیلوف کا ماسک تھا اور اس ماسک پر اپنی اس عارضی حیثیت کا پلاسٹک میک اپ تھا۔ میک اپ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ ٹورمینڈو فوراً ہی سو گیا تھا مگر مجھے سونے میں خاصا وقت لگا۔ ذہن پر بہت سے خیالات کی جلغار تھی، ماضی کی یادیں بھی تھیں اور مستقبل کے منصوبے بھی۔ مستقبل جو ہمیشہ بے یقینی کی دھند میں پوشیدہ ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس دھند کے عقب سے کیا برآمد ہوگا۔ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ خیالات کی اس جلغار کے دوران کب نیند کی کوئی ننھی سی کرن پھوٹی اور کب اس نے مجھے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ میں سوچتے سوچتے سو گیا اور دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے چینی کے احساس نے گھیر رکھا تھا۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی جس نے سوتے میں میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے شاید 1000ویں حصے کے اندر میری نیند کافور ہو گئی اور حواس پوری طرح کام کرنے لگے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہونے پر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ زیرو پاور کے نیلے بلب کی مدھم روشنی میں ٹورمینٹو اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، الماریاں بند تھیں، ایئر کنڈیشنر کی خنک سرسراہٹ معمول کے مطابق تھی، کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے، دیوار کی گھڑی 3 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں پورے کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ سب کچھ حسب معمول تھا، کہیں کسی گڑبڑ کے آثار نہیں تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ میری چھٹی حص مسلسل کسی خطرے کا اعلان کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اثر نو کمرے کا جائزہ لیا مگر کوئی ایک بات بھی خلاف معمول تلاش نہ کر سکا۔ آخر میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میری چھٹی حص نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس سے قبل بھی بارہا میری چھٹی حص نے مجھے اندیکھے خطرات سے خبردار کیا تھا اور ماضی کے ریکارڈ کے پیش نظر میں اس پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کمرے کے اندر موجود ہے یا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر بظاہر کمرے میں میرے اور ٹورمینڈو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو بیڈ کے نیچے ہو سکتا تھا یا باتھ روم کے اندر۔ باہر سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا، دور کہیں سے بھاری اسلحہ چلنے کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ لڑائی بصرہ کے مضافات میں ہو رہی تھی اور اس قسم کے دھماکوں کی آوازیں معمولات میں شامل ہو گئی تھیں، اس لیے انہیں غیر معمولی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی سرسراہٹ اور وال کلاک کی ٹک ٹک بھی معمول کی بات تھی۔ ٹورمینٹو سوتے میں خراٹیں نہیں لیتا تھا مگر اس کی گہری گہری سانسیں لینے کی آوازیں بھی میری سماعت سے صاف ٹکرا رہی تھیں۔ ایسے میں یہ یقین کر لینا مشکل ہی تھا کہ کمرے میں اور کوئی بھی موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اسے بیڈ کے نیچے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہلے جلے بغیر
सिर्फ आंखों को गर्दिश देकर कमरे का जायजा लिया। अगर कोई वहां मौजूद होता तो मेरी नजरों से छुप नहीं सकता था, और एक सोए हुए शख्स से छुपने के लिए बेड के नीचे घुसने की तुक भी समझ में नहीं आती थी। फिर मुझे ये भी अच्छी तरह याद था कि सोने से कबल मैंने खुद अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई थी। खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। ऐसे में किसी के कमरे में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके लिए जरूरी था कि अंदर से कोई चिटखनी खोली जाती। वाहिद सूरत ये थी कि मेरे सोने के बाद टॉर्मेंटो ने कोई चिटखनी खोल दी हो, और ये बात भी खासी नाकाबिल फहम थी। वो तो तकरीबन फौरन ही सो गया था और मुझे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इतने कम वक्फे में किसी सोए हुए शख्स का उठना मुश्किल ही होता है। मैं बेड से उतर आया। बेचैनी के जिस एहसास से मैं गुजर रहा था उसके पेश नजर सोना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। दोबारा सोने से कबल पूरी तरह मुतमईन होना जरूरी था। मैंने सबसे पहले दीवार की अलमारी खोल कर देखी, फिर बेड के नीचे झांक कर देखा। दोनों जगह कोई नहीं था। मैं खुद को अहमक महसूस करने लगा। मैं एक बंद कमरे के अंदर किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जहां किसी का दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं अपनी उस हिस्स का क्या करता जो बदस्तूर मुझे खतरे का सिग्नल दिए चली जा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि खतरे की नौयत मुख्तलिफ भी तो हो सकती है। मसलन ये कि कोई मोहलक किस्म का कीड़ा मकोड़ा, सांप या बिच्छू कमरे में घुस आया हो। इस ख्याल से कदरे इत्मीनान महसूस हुआ, मगर मुकम्मल इत्मीनान जरूरी था। अभी तक मैंने बाथरूम चेक नहीं किया था। मुझे तवक्को थी कि वहां भी कोई नहीं होगा, और बाथरूम का दरवाजा खोलने पर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। टॉर्मेंडो अभी तक बेखबर सो रहा था। मैंने बड़ी खामोशी के साथ कमरे की तलाशी ली, और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी उलझन में इजाफा होता चला जा रहा था। खतरे की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी। मैंने हर मुमकिन बारीक बीनी से कमरे की तलाशी ली, मगर कोई मुस्बत नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा। कमरे में कुछ होता तो मिलता, वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कोई खतरा था जरूर। अब सिर्फ 2 इम्कानात बाकी रह गए थे। खतरा या तो दरवाजे की समत से था या फिर खिड़कियों की तरफ से। खिड़की के इम्कानात ज्यादा थे। वजह यह थी कि खिड़की बैरूनी रुख पर खुलती थी, और अगर कोई उस कमरे में घुसने की कोशिश करता तो उसके लिए आसान रास्ता खिड़की वाला होता, जहां किसी किस्म की मज़ाहमत के इम्कानात बहुत कम थे। बंगले के अंदर घुसना तो शायद मुमकिन ही न था। मैंने पहले खिड़की को आजमाने का फैसला किया, मगर खिड़की खोलने के लिए कमरे की लाइट बुझाना जरूरी था। बसरा उन दिनों ब्लैकआउट की जद में था। 0 पावर का बल्ब बुझते ही कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मैं अंधेरे में खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की के नजदीक पहुंचकर पर्दा सरका दिया। बाहर की फजा तारीक नहीं थी। कमरी महीने का 3रा हफ्ता चल रहा था, और चांद की रोशनी में सामने की रौ में बने हुए बंगले धुंध में डूबे हुए से महसूस हो रहे थे। मैंने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलने से हल्की सी आवाज उभरी, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खिड़की खोलने की आवाज के अलावा मैंने कोई और आवाज भी सुनी हो। फौरी तौर पर यह तयन करना दुश्वार था कि ये मेरा वाहिमा था या हकीकत थी। ताहम मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर झांका। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। अहाते की दीवार के साथ उगे हुए फूलों के पौधे नरम हवा के दोष पर लहरा रहे थे, और गेट के दोनों तरफ लगे हुए खजूरों के तनावर दरख्त गोया सरशारी के आलम में झूम रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी वहम का शिकार हो गया हूँ। खिड़की खुलने पर जो आवाज मैंने सुनी थी, मुमकिन है वो किसी दरख्त के पत्तों की सरसराहट हो। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने दोबारा एक आवाज सुनी। इस बार आवाज बहुत वाज़े थी। न सिर्फ वाज़े थी, बल्कि मैंने उसकी समत का तयन भी कर लिया था। आवाज कमरे के अंदर से आई थी और दरवाजे की समत से आई थी। मैं बड़ी तेजी से पलटा। खिड़की खुली होने की वजह से कमरे में अंधेरा नहीं रहा था और मैं बखूबी देख सकता था, खास तौर पर दरवाजे का चमकदार हैंडल जो अब नीचे से ऊपर की तरफ वापस जा रहा था। कमरे के बाहर राहदारी में कोई मौजूद था और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे माथे पर शिकने पड़ गईं। मेरे और टॉर्मेंटो के अलावा इस बंगले में सिर्फ 2 अफराद और थे, आर्थर और उसका मुलाजिम। उन दोनों में से किसी से भी ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इस वक्त और इस तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करें। बिलफर्ज उन्हें हम दोनों में से किसी से कोई काम पड़ता तो भी वो ये पुरस्कार अंदाज हरगिज इख्तियार न करता। तो फिर सवाल ये था कि बाहर राहदारी में कौन है और इस कमरे तक उसकी रसाई क्यों कर हुई। आर्थर और उसके मुलाजिम का क्या बना। ये तमाम सवालात अपनी जगह बेहद अहमियत के हामिल थे, मगर इससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि उस शख्स से निमटा जाए जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई शख्स बंगले के अंदर घुसा है तो यकीनन वो तन्हा नहीं होगा, उसके और भी साथी होंगे और मुसल्ला भी होंगे। जबकि ना तो मेरे पास असलहे के नाम पर कोई चीज थी और ना ही टॉर्मेंटो के पास कुछ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। इसके लिए टॉर्मेंटो को उठाना जरूरी था। उसे जगाए बगैर दरवाजा खोलता और फायरिंग होती तो वो सोते में मारा जाता और मेरा मकसद फौत हो जाता। फौरी तौर पर इस फैसले पर पहुंचकर मैं टॉर्मेंटो के बेड की तरफ झपटा
और उसका कांधा पकड़कर हिलाया। टॉर्मेंटो हड़बड़ा कर उठा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चूंकि कमरे की लाइट बुझी हुई थी इसलिए फौरी तौर पर उसे कुछ नजर भी नहीं आ सकता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुंह से कोई आवाज निकाले जिसे सुनकर बाहर मौजूद शख्स या अशखास होशियार हो जाएं। मैंने जल्दी से सरगोशियाना आवाज में कहा, टॉर्मेंटो, मैं हूं नॉर्मन, हम खतरे में हैं। कोई कमरे के बाहर मौजूद है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। खबरदार, जोर से कुछ मत बोलना वरना वो होशियार हो जाएंगे। मेरी बात उसकी समझ में आ गई, मगर शायद नींद उसके जहन पर मुसल्लत थी और वो पूरी तरह सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था। उसने कहा, कौन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है? उसकी आवाज हल्की ही थी। मैंने उसका बेवकूफाना सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। वो जो भी हैं मुसल्ला जरूर होंगे। मुमकिन है फायरिंग भी शुरू कर दें। तुमको मैंने इसलिए उठाया है कि फायरिंग होने की सूरत में कहीं सोते में ही ना मारे जाओ। टॉर्मेंटो की अकल ठिकाने आ गई और उसके हवास पूरी तरह काम करने लगे। दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? नॉर्मन ने खौफजदा से अंदाज में कहा। मैंने जवाब दिया, मालूम तो हो आखिर बाहर है कौन और इस तरह चोरी छुपे यहाँ क्यों घुसा है। टॉर्मेंटो बोला, ये सरासर हिमाकत होगी। बाहर कौन है और अंदर क्यों घुसा है ये मालूम करना आर्थर का दर्द-ए-सर है। हम क्यों अपनी जिंदगियां खतरे में डालें? टॉर्मेंटो ठीक कह रहा था। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्थर जाने और उसका काम जाने। मैं तो बिल्कुल ही गैर मुतल्लिक था। अगर इन लोगों पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो हुआ करे, मुझे उससे क्या। मगर मैं अपनी मुतजस्सिस फितरत का क्या करता। मेरे लिए निचला बैठना मुश्किल हो रहा था। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ टॉर्मेंटो, और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। टॉर्मेंटो ने फिर एहतजाज करने की कोशिश की थी मगर मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे और उसने भी ये महसूस करके कि अब मैं दरवाजा खोल ही दूंगा, बेड से छलांग लगा दी। वो खौफजदा था और उसका खौफजदा होना हक बजानिब था। एक निहत्ता शख्स कभी भी मुसल्लह अफराद का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने दरवाजे की चटखनी गिराई और तेजी से दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि अगर कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो तो मैं दरवाजे के पट की आड़ में रहूं। मगर दरवाजा नहीं खुला, हालांकि मैं अब भी बाहर राहदारी में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। मैं सांस रोके दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। बाहर जो कोई भी था उसे ये मालूम नहीं हो सकता था कि इस कमरे में मौजूद फर्द या अफराद गैर मुसल्लह होंगे। शायद वो इसीलिए मोहतात था। मुमकिन है जिस तरह मैं उनके अंदर आने का इंतजार कर रहा था उसी तरह वो भी मेरे बाहर निकलने के मुंतजिर हों। ये तो एक गैर मामूली सी बात थी कि हम मुसल्लह नहीं थे और ऐसे में मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का खतरा बहरहाल मोल नहीं ले सकता था। फिर वो हुआ जिसकी तवक्को न मैं कर सकता था और ना ही ये बात किसी और के वहमो गुमान में आ सकती थी। दरवाजे के कुफल में चाबी घूमने की आवाज सुनाई थी। फिर मैंने हैंडल घूमते देखा और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया है। और उसके बाद बाहर से धीमी आवाज में बातें करने की आवाजें आईं और फिर मैंने एक से ज्यादा लोगों के चलने की आवाजें सुनी जो कमरे से दूर होती जा रही थी। मैं बुरी तरह बौखला गया। उन लोगों ने बड़ी खिलाफ तवक्को हरकत की थी। मैंने झपट कर दरवाजे के हैंडल पर जोर आजमाई की मगर मेरा अंदाजा दुरुस्त ही था। दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया था। टॉर्मेंटो ने भी बदली हुई सूरत हाल महसूस कर ली थी और उठकर मेरे नजदीक आ गया था। उसने परेशान से लहजे में पूछा, क्या बात है नॉर्मन? मैंने कहा, तुम देख ही रहे हो दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। मेरी बात सुनकर उसके भी आसान खता हो गए और मेरी तरह उसने भी हैंडल से जोर आजमाई की जो बेनतीजा ही रही। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, अब क्या होगा नॉर्मन? अभी एक कैद से निकलने नहीं पाए थे कि फिर फंस गए। मैं उसे क्या जवाब देता? खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो कौन लोग थे और हमें इस तरह कमरे में बंद कर देने से उनका मकसद क्या था। टॉर्मेंटो ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी इंटेलिजेंस वाले हमारी तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हों? मैंने कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अगर उन लोगों का ताल्लुक आर्मी इंटेलिजेंस से होता तो वो हमें यूं छोड़कर वापस न जाते। टॉर्मेंटो बोला, तो फिर आखिर वो कौन लोग थे और हमें यूं कमरे में क्यों बंद कर गए? मैंने कहा, जो लोग भी हैं हमारे दुश्मन हैं, दोस्त हरगिज नहीं हो सकते। और उसके साथ ही मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ, यहूदियों के दुश्मन मेरे तो दोस्त ही होंगे। मगर मैं अपने इस ख्याल का बरमला इजहार नहीं कर सकता था। मैं एक यहूदी एजेंट के रूप में जो था। टॉर्मेंटो बोला, यह भी तो मुमकिन है कि उन लोगों का ताल्लुक किसी मकामी जराइम पेशा गिरोह से हो। मैंने कहा, हाँ ये मुमकिन है, मगर हम इस इम्कान पर यकीन करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करनी है। मैंने कहा और कमरे की खिड़की बंद करके पर्दे खींच दिए। टॉर्मेंटो ने कमरे की लाइट जला दी। बोला, अगर मुझे 4-5 इंच लंबा कोई मोटा तार मिल जाए तो मैं कुफल खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कहा, हमारी कुल कायनात ये कमरा है, मिलकर ढूंढते हैं। अगर कोई तार मिल गया तो ठीक है, वरना फिर खिड़की के रास्ते ही फरार होना पड़ेगा। काफी तलाश करने के बाद हमें एक मुड़ा तोड़ा सा तार मिल गया
और टॉर्मेंडो वो तार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे ताला खोलने में चंद मिनट से ज्यादा न लगे। टॉर्मेंडो ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, दरवाजा गैर मुकफ्फल हो गया है नॉर्मन, अब बताओ क्या किया जाए। मैंने कहा, सबसे पहले तो बंगले का जायजा लेना जरूरी है ताकि उन लोगों के बारे में कुछ तो अंदाजा हो, लेकिन दरवाजा खुलने से कबल कमरे की लाइट बुझा देना जरूरी है। स्विच बोर्ड दरवाजे के साथ ही दीवार पर नस्ब था। मैंने कमरे की रोशनी बुझाई और टॉर्मेंडो के शाने पर हाथ रख दिया। मैंने उसे कहा, मेरे नजदीक ही रहने की कोशिश करना, मुमकिन है वो लोग अभी तक गए ना हों। एक साथ रहकर हम एक दूसरे से बेखबर तो नहीं रहेंगे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के मामले में मैंने टॉर्मेंडो को आगे रखा। एक यहूदी के मेकअप में नामालूम लोगों के हाथों मारा जाना मुझे गवारा नहीं था। अगर मरना ही है तो एक मुसलमान की जगह एक यहूदी क्यों न मरता। राहदारी मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी, हालांकि यहाँ से रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं जा सकती थी। ब्लैकआउट की खिलाफ वर्जी होने का कोई इम्कान नहीं था। यही वजह थी कि रात जब हम सोने के लिए कमरे में आए थे तो यहाँ रोशनी थी, जबकि उस वक्त मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। शायद ये भी उन्हीं लोगों का कारनामा था जो यहाँ घुस आए थे। मैं और टॉर्मेंडो आगे पीछे मोहतात अंदाज में चलते हुए नीचे जाने वाले जीनों तक पहुंचे। टॉर्मेंडो बदस्तूर मुझसे आगे था। उसका ख्याल था कि वो लोग फरार हो चुके हैं। खुद मेरा ख्याल भी यही था, लेकिन मैं मोहतात रहना चाहता था और यही एहतियात पसंदी मेरे काम आ गई। जीनों के पास पहुंचते ही नीचे से एक फायर हुआ और टॉर्मेंडो चीख मार कर गिरा। मैंने बिजली किसी तेजी से फर्श पर लोट लगाई थी, वरना अगली गोली ने मुझे चाट लिया होता। ये अंदाजा गलत साबित हुआ था कि वो लोग वापस जा चुके हैं। वो वापस नहीं गए थे। मालूम नहीं उनकी तादाद क्या थी। हम पर फायर करने वाला बहरहाल एक ही था जो अंधेरे की वजह से हमें नजर नहीं आ सका था। हम चूंकि मुतहर्रक थे इसलिए वो हमें देख लेने में कामयाब हो गया था। टॉर्मेंडो बुरी तरह तड़प रहा था। मालूम नहीं गोली उसके जिस्म पर कहाँ लगी थी। जख्म अगर मोहलक न होता तब भी उसका बचना मुश्किल ही लगता था। उसके जिस्म से खून तो बहरहाल बहता ही रहता। उसके लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करना तो दूर की बात थी। मुझे तो खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। 2 फायरों के बाद मजीद फायर किए गए। मालूम नहीं वो कितने दीदा दिल लोग थे कि उन्होंने साइलेंसर तक इस्तेमाल करने की जहमत गवारा न की, यानी उन्हें किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। मजीद फायर उन्होंने महज एहतियातन ही किए थे, इसलिए कि अगर हम में से किसी के पास असलहा होता तो हमने जवाबी फायर जरूर किए होते। लेकिन ये मालूम होने के बावजूद कि हम गैर मुसल्लह हैं, उन्होंने ऊपर आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने महसूस किया कि वो फरार हो रहे हैं। शायद यहाँ उनकी आमद का मकसद पूरा हो चुका था। वो सदर दरवाजे से बाहर निकले थे, शायद उसी रास्ते से अंदर भी आए होंगे। उन्होंने सदर दरवाजे को भी बाहर से मुकफ्फल कर दिया था। मैंने कुंजी घूमने की आवाज साफ सुनी थी। अब मेरे लिए इस बात पर यकीन करना दुश्वार था कि वो मकामी जराइम पेशा अफराद थे। बात यकीनन कुछ और थी। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा। खतरात बढ़ चुके थे। गोलियां चलने की आवाजें दूर तक गई होंगी और अब उस बंगले में नहीं रहा जा सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि आर्थर कितनी गहरी नींद सो रहा है, जो कई फायर होने के बावजूद नहीं उठा, और उसका वो मुलाजिम कहाँ मर गया जो आर्थर के बकौल सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। मैंने सबसे पहले राहदारी की लाइट जला दी। लाइट ऑन होने के बाद नीचे हॉल में भी रोशनी फैल गई थी। मैंने एक लम्हे में पूरे हॉल का जायजा ले डाला। अब वहाँ कोई नहीं था। तमाम हमला आवर फरार हो चुके थे। एक तरफ से मुतमईन होकर मैंने टॉर्मेंडो को चेक किया। गोली उसके सीने पर तकरीबन वस्त में लगी थी और वो गशी की कैफियत में था। खून काफी बह चुका था। अब भी अगर उसे फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाती तो उसके बचने के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते थे। गोली दिल से चंद इंच हट कर लगी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। हर लम्हा इस बात का खतरा था कि कहीं कोई आ ना जाए। फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी न किसी ने पुलिस को फोन जरूर कर दिया होगा और वो यहाँ कैद होकर रह गया था। टॉर्मेंटो को उसके हाल पर छोड़कर मैं तेजी से निचली मंजिल पर आया और आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा। निचली मंजिल की रोशनियां जलाने पर यह हैरान कुन इंकिशाफ हुआ कि कहीं किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही, जैसे वहां कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही ना हो।